Now it is almost 12:15 a.m. So basically what we are doing is studying in the dark night with the bright light. This is so bright light. Here we can easily see. So starting with the chapter that is corporate level strategy. Before discussing anything, what is corporate level strategy? Corporate level strategy is what? Firstly, I want to concern few things that there are two types of decision. One is strategic decision और another is operational decision. Strategic decision जो होते हैं basically वो top level लेता है and top level is nobody other than the corporate level. जो corporate level strategies होती है वो सारी top level में होती है. तो what we are reading here by is corporate level strategy. Now today start the SM, the strategic management SM with ASIN. ASIN stands for, ASIN is nothing but, here comes, where is my name? Somewhere missing. Alright. So today we are starting the strategic management chapter 4, strategic management with ASIN, that is Saloni Nahar. So good evening, or we can say even the good night. Today our entire focus will be on stability strategy. As we know that corporate strategy is broadly classified into 4 categories. One is stability. These are basically classified into 4 categories: stability strategy, and we can say expansion strategy, retrenchment and combination. Here comes the picture that there is a stability. After that we will read expansion, retrenchment and combination. But today basically our entire focus is on stability strategy. What is stability strategy? Firstly, this is the ICI module. This is a reference book from where we have, I am also an intermediate student who have just in this previous attempt qualified with November 20 group 1 and now preparing for group 2. So I am not a teacher at all. I am just a student who is preparing along with you. So basically what is stability strategy? Now we should together study what is stability basically is. I am taking summary notes of a teacher so that we can study in more precise terms, more clearly. What is corporate level strategy? Corporate level strategy क्या है? Corporate strategy a firm can adopt can be classified into 4 broad categories. As we have already discussed that बड़े बड़े जो decisions होते हैं जिसमें thinking involve होती है, skill involve होती है, वो कौन देता है? वो top level होता है. Top level is nobody other than the corporate level strategy. जो corporate level जो strategy बनाती है that is corporate level. उसमें हम क्या बोल रहे हैं? That corporate strategy a firm can adopt can be classified into 4 broad categories. जो corporate strategy जो एक firm adopt करता है उसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है. फर्स्ट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, देन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एंड अ कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. व्हाट स्टेबिलिटी बेसिकली इज, व्हाट स्टेबिलिटी क्या है एंड व्हाट आर द मेजर रीज़न क्या है स्टेबिलिटी के, हियर वी विल डिस्कस. फर्स्टली वी शुड रीड विद द रेफरेंस बुक so that then we will read with ICI module and then we will learn all the things with regard to stability. So firstly, for the better understanding purpose, I am using here the reference book of CA of a chartered accountant professor. So what is stability strategy क्या है? A stability strategy refers to a strategy by a company where the company stops the expenditure on expansion. In other words, it refers to a situation where company do not venture into new market or introduce new product. Firstly, we should understand what a stability strategy basically is. Then after that we will learn, revise, repeat and recite. Everything we will do just after the understanding part. As we know that 30 marks is from MCQ, so we should have a thorough understanding as well. So what is stability strategy क्या है?
स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या है? अ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी रेफर्स टू अ स्ट्रैटेजी। एक स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रैटेजी बाय अ कंपनी वेयर द कंपनी स्टॉप्स, जहाँ पे क्या करता है, वेयर द कंपनी स्टॉप्स द एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंशन, जहाँ कंपनी रुक जाती है एक्सपेंडिचर, जहाँ एक्सपेंशन पे कोई खर्चा नहीं करती है। इन अदर वर्ड इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर कंपनी डू नॉट वेंचर इनटू न्यू मार्केट और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है वेयर कंपनी डू नॉट वेंचर इनटू न्यू मार्केट और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। चाहे कंपनी क्या करती है, वेंचर नहीं करती है, कोई भी वेंचर, फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर में नहीं जाएगी, किसी भी इनटू न्यू मार्केट, किसी नए मार्केट में नहीं जाएगी और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। यानी कि स्टेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ कंपनी रुक जाती है कोई एक्सपेंशन करने से, एक्सपेंशन इन द सेंस किसी और एक्सपेंडिचर में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से किसी भी नए मार्केट में नहीं जाएगी, कोई भी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड बाय कंपनी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। Why a company is adopting a stability strategy? Why? You should must know that why is company choosing stability? हर कंपनी स्टेबिलिटी नहीं चूज़ करती है, कुछ ही कंपनी चूज़ करती है। एंड वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड चूजिंग द स्टेबिलिटी इज़ अंडर when the company plans to consolidate its position in the industry in which company is operating. When the company plans to consolidate, जब एक कंपनी प्लान करती है to consolidate its position, कि वो अपनी जितनी भी पोजीशन है जो सेपरेट है उसे एक सिंगल यूनिट में कर दे, कंसोलिडेट कर दे उसकी ओवरऑल पोजीशन को इन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग, जिसमें कंपनी ऑपरेट करी। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट व्हेन द कंपनी प्लान्स, वैन अ कंपनी अडॉप्ट स्टेबिलिटी, जब वो प्लान करती है कि उसे कंसोलिडेट करनी है जितनी भी पोजीशंस है इन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग, जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है। सेकेंड इज़ व्हेन द इकोनॉमी इज़ इन रिसेशन। एज वी नो कि हमारी इकोनॉमी अभी भी कितना डाउनवर्ड जा रही है, इतने रिसेशन में जा रही है। तो नॉर्मली हम स्टेबिलिटी कब चाहते हैं, जब कंपनी की इकोनॉमी, हमारी कंट्री बहुत ही रिसेशन पीरियड में चल रही है, बहुत डाउन चली गई है और देयर इज़ अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, देन कंपनी वांट टू हैव मोर कैश इन देयर बैलेंस शीट। कंपनी चाहती है पैसा रखना अपने बैलेंस शीट में रादर देन इन्वेस्टिंग दैट कैश फॉर एक्सपेंशन और सच अदर एक्सपेंसेस। इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स, कहीं और पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय कंपनी चाहती है कि अपनी बैलेंस शीट में वो पैसा रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसेशन है, दैट्स वाई। After that, the third point is when company has too much debt in the balance sheet, then also company stop or postpone their expansion plan, because if company takes more debt for expansion, then it would not able to pay interest rate on such debt and it may create liquidity crunch for the company. When the company has too much debt, अगर कंपनी के पास बहुत सारा डेट बर्डन हो गया है, वो कर्जे में डूबी हुई है इन द बैलेंस शीट, देन ऑल्सो कंपनी स्टॉप फॉर और पोस्टपोन। इन दैट केस ऑल्सो कंपनी क्या करेगी, पोस्टपोन करेगी अपने एक्सपेंशन प्लान को, आगे डालेगी, पोस्टपोन कर देगी, बिकॉज इफ कंपनी टेक्स मोर डेट। बट अगर वो ऐसा नहीं करेगी, अगर उसके पास ऑलरेडी बहुत डेट में डूबी हुई है, बहुत सारा डेट कंपनी के ऊपर है और स्टिल इफ़ ही डेट अगर और डेट ले लेगी, इन दैट केस बिकॉज इफ कंपनी टेक्स मोर डेट, अगर और ज़्यादा डेट ले लेगी फॉर एक्सपेंशन, देन इट वुड नॉट एबल टू पे इंटरेस्ट रेट। तो इन दैट केस वो अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाएगी and on such debt and it may create liquidity crunch for the company, और it might create a situation कि कंपनी जो है liquidate हो जाए। तो नो बडी वॉन्ट्स द सिचुएशन लाइक दैट। सो इन दैट केस अगर बहुत ज़्यादा डेट, तो फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, बहुत अगर कंपनी कंसोलिडेट करना चाहती है उसकी पोजीशन, सेकंड अगर रिसेशन है इकोनॉमी में तो भी वो अपनी बैलेंस शीट में ज़्यादा पैसा रखना चाहती है, इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग सम अदर एक्सपेंशन प्लान्स में खर्चा नहीं करना चाहती है। या फिर अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट गिरा हुआ है, व्हेन कंपनी हैज़ टू मच डेट इन द बैलेंस शीट, देन ऑल्सो कंपनी स्टॉप्स और पोस्टपोन देयर एक्सपेंशन प्लान। अगर कंपनी का हैज़ टू मच डेट, बहुत ज़्यादा डेट है बैलेंस शीट में, तब भी कंपनी स्टेबिलिटी में रहना चाहती है, इंस्टीड ऑफ एक्सपेंशन नहीं करना चाहती है। व्हेन द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री विच हैज़ रीच्ड मैच्योरिटी फेज, अगर आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो मैच्योरिटी फेज में पहुंच चुकी है, व्हेन द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री विच हैज़ रीच मैच्योरिटी फेज में पहुंच चुकी है एंड देयर इज नो फर्दर स्कोप फॉर ग्रोथ, देन ऑल्सो कंपनी अडॉप्ट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। आपकी कंपनी ऐसी है जिसने बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा एक्सपेंशन कर चुकी है और अब वो मैच्योरिटी स्टेज में आ सकती है, तब भी कंपनी स्टेबिलिटी में रहना चाहती है. व्हेन द गेन फ्रॉम एक्सपेंशन प्लान आर लेस देन द कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर सच एक्सपेंशन, देन कंपनी फॉलो द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. व्हेन द गेन फ्रॉम एक्सपेंशन प्लान, जितना आप खर्चा कर रहे हो, जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है एक्सपेंशन से, वो कम है कॉस्ट से, यानी कि कॉस्ट और ज़्यादा है आपके गेन से भी, यानी कि आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा तो आपकी कॉस्ट आ रही है, यानी कि इन शॉर्ट आपको प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है. तो जो आपको गेन हो सकता है वो नेगेटिव में शो हो, गेन को आप नेगेटिव में शो करोगे. तो जो आपकी कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है इंस्टीड जो आपको रिटर्न मिल रहा है उससे. फॉर सच एक्सपेंशन द कंपनी फॉलो द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. इन ऑल द 5 केसेस वी कैन से दैट द कंपनी यूजेस दी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ताकि वो कंसोलिडेट करे. नंबर 1, कंसोलिडेट करे पोजीशन इन द इंडस्ट्री इन विच कंपनी ऑपरेट कर रही है. नंबर 2, अगर रिसेशन है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है और कंपनी चाहती है बैलेंस शीट में पैसा रखना इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स, तब भी कंपनी क्या करती है, कंपनी स्टेबिलिटी में रहती है. व्हेन द कंपनी हैज़ बहुत ज़्यादा डेट हो गया, इन डेट कैश ऑल्सो. 4th पॉइंट इज़, अगर मैच्योरिटी पे ऑलरेडी मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी है तब भी वो स्टेबिलिटी चाहती है, वो ज़्यादा हेडेक नहीं चाहती. एंड द फिफ्थ इज़ जब आपका कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इवन द रिटर्न से रिटर्न कम आ रही है, यानी कि आपको प्रॉफिट लॉस जो है वो कम हो रहा है, यानी कि आपको लॉस हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और जो उससे मिल रहा है वो कम हो रहा है. उसके बाद ये दिस इज़ वेरी फेमस पॉइंट एट कंक्लूजन वी कैन से स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि इट डजंट मीन डू नथिंग स्ट्रैटेजी. ये कोई डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं है. इट इज़ नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. इसका स्टेबिलिटी है बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना. इट इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यू डेवलपमेंट टू इंश्योर दैट